Greetings, grace and peace be upon you, dear family. Welcome to Hosting the Ark Day 20th. Today we continue our journey by looking at the journey of the Ark in part 2, focusing on the brook of Kidron. प्रिय परिवार, आप सभी पर अनुग्रह और शांति बनी रहे। होस्टिंग दी आर्क के 20वें दिन में आपका स्वागत है। आज हम वाचा के संदूक की यात्रा भाग 2 में किद्रोन नाले के आत्मिक महत्व को समझेंगे। In the book of 2 Samuel chapter 15, King David crossed the brook Kidron while fleeing from his rebellion of his own son, Absalom. It was one of the darkest moments of David's life. दूसरा शमूएल 15:23 से 25 में देखते हैं कि राजा दाऊद अपने ही पुत्र अबशालोम के विरोध के कारण किद्रोन नाले को पार कर रहा था। ये उसके जीवन का सबसे कठिन और दुखद समय था। Although the ark was with David, he refused to use God's presence for his personal advantage. Instead, he instructed the priest to return the ark to Jerusalem, trusting completely in the will of God. यद्यपि वाचा का संदूक दाऊद के साथ था, फिर भी उसने परमेश्वर की उपस्थिति का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। उसने याजकों से कहा कि वाचा के संदूक को वापस यरूशलेम ले जाएं, क्योंकि उसे परमेश्वर की इच्छा पर पूरा भरोसा था। Centuries later, in John chapter 18 verse 1 tells us that Jesus also crossed brook Kidron with his disciples. But unlike David, Jesus was not running away from his enemies. He was willingly walking towards the cross. सत्य बात यूहन्ना 18:1 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु भी अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले को पार करके गए, लेकिन दाऊद की तरह वे भाग नहीं रहे थे। वे स्व इच्छा से क्रूस की ओर बढ़ रहे थे। Beyond Kidron was the Garden of Gethsemane, where Jesus prayed, surrendered to the Father's will, and prepared himself to bear the sins of the world. किद्रोन का अर्थ है अंधकार में या उदासी की घाटी। इस्राएल के इतिहास में ये वो स्थान था जहां मूर्तियां नष्ट की गई और अशुद्धता को दूर किया गया। Before God brings greater glory, he often leads his people through a season of cleansing. Before resurrection comes to the cross, before exaltation comes humanity, before victory comes surrender. परमेश्वर महिमा देने से पहले अपने लोगों को शुद्ध करता है। पुनरुत्थान से पहले क्रूस आता है। महिमा से पहले नम्रता आती है और विजय से पहले पूर्ण समर्पण आता है। Every believer will face a Kidron. There will be a seasons of sorrow, rejection, disappointment and testing. But Kidron is never the final destination. हर विश्वासी को अपने जीवन में किसी न किसी समय किद्रोन की घाटी से होकर गुजरना पड़ता है। कभी दुख, कभी अस्वीकृति, कभी विश्वासघात और कभी कठिन परीक्षाएं आती हैं, लेकिन किद्रोन हमारी अंतिम मंजिल नहीं है। David crossed the valley and was restored to his throne. Jesus crossed the valley and entered resurrection glory. God also promises to bring his faithful people into restoration. दाऊद घाटी पार करके फिर सिंहासन पर लौटा। प्रभु यीशु घाटी पार करके पुनरुत्थान की महिमा में प्रवेश कर गए। उसी प्रकार परमेश्वर अपने विश्वासी लोगों पुनर्स्थापना और विजय तक पहुंचाता है। Psalm 23:4 says, "Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me." Notice that David said, "I walk through the valley" is temporary, but God's promise is eternal. भजन संहिता 23:4 कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी मैं किसी विपत्ति से नहीं डरूंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ है। ध्यान दीजिए, दाऊद कहता है, मैं होकर चलता हूँ। घाटी स्थायी नहीं होती, लेकिन परमेश्वर के वादे सदैव बने रहते हैं। Isaiah 43:2 gives us the promise, "When you pass through the waters, I will be with you." Jesus has already walked this path before us. Therefore, we can walk in confidence knowing that he will never leave. यशायाह 43:2 में परमेश्वर कहता है, जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग संग रहूंगा। प्रभु यीशु इस मार्ग से पहले ही होकर जा चुके हैं, इसलिए हम निडर होकर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वे हमें कभी नहीं छोड़े। Dear family, if you're walking through your Kidron today, do not lose heart. The same Lord who walked with David and went before Jesus will also walk with you. Your valley is only a passage to God's purpose. प्रिय परिवार, यदि आज आप भी अपने जीवन के किसी किद्रोन से होकर गुजर रहे हैं तो निराश मत होइए। जिस प्रभु ने दाऊद का साथ दिया और जो स्वयं यीशु के आगे की योजना में कार्य कर रहा था, वही प्रभु आज आपके साथ भी है। आपकी घाटी आपकी मंजिल नहीं, बल्कि परमेश्वर के उद्देश्य तक पहुंचने का मार्ग है। Thank you for joining us today. May the Lord strengthen you as you continue to host the ark.
धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। परमेश्वर आप सभी को सामर्थ दे और अपनी उपस्थिति में जीवन, परिवार और कलीसिया में निरंतर स्थान देते रहे। Grace and peace be upon all of you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।